Hi people, welcome to my YouTube channel Study with Prati2, and to today's video we are going to talk about how to deal with the deteriorating academics, or better to say यार मेरे marks college में कितने आए थे. Honestly speaking, I do not prefer to say about it, but I think people need to be vocal when it comes to their marks. Let me tell you why. So why को जानने से पहले, if you are not connected with me on my Instagram, you can do it. It is my Instagram handle KritiSahu2605. Let's get started with our today's video. आपने वैसे vocal for local तो सुना होगा, but I am talking about vocal for grades. The reason is there are more and more students who are dealing with their academics and which is not going well. और जो हमेशा टॉपर्स रहते हैं, भाई टॉपर्स का एग्जाम्पल हर जगह दिया जाता है. इट इज़ फाइन टू बी टॉपर, बट देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस विद दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग गुड इन academics. एंड वेन एवर ऑन सोशल मीडिया और ऑन सच प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब कोई अपने मार्क्स शेयर करता है ना, दोज हु आर ऑलरेडी एक्चुअली डूइंग समथिंग, people get inspired of it. In fact, they score better. Trust me, I actually observed it. So first of all, if I talk about my grades, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी. It is something that I believe you don't need to give much importance. Let me tell you why. I have been a kind of student who never given so much importance to her academics, except my 12, because at that time I was expecting too much. However, I didn't score like the way I was expecting to myself. So it is very important that you give lesser importance. Like if academics is the center of your life, then definitely you are going to get one shock from it. Trust me, it actually happens. बहुत सारे बच्चे जो अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, they get taunted that you can't do anything. But I would like to share my scores. So if I talk about my school time, तो school time से मैं कहूँगी कि मैं average student में आप काउंट कर सकते हैं. आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ इन दी टॉप 3 स्टूडेंट्स, और जो टॉपर्स रहा करते थे क्लास में. मैं लास्ट बेंचर भी नहीं थी, मैं बीच में आती थी. लाइक आई यूज़ टू गेट रैंक ऑफ 4th and 5th. ये मैं आपको मेरे अप टू 10th का बता रही हूँ. तो मेरी रैंक कैसे आ जाती थी. आई वॉज अ गुड चाइल्ड, ओके, नॉट दैट मच ब्राइट. क्या होता है ना कि आपको ब्राइट बना दिया जाता है इवन यू आर नॉट. हाउएवर यू नो दी फैक्ट कि भाई यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है. वो फैक्ट मैं जानती थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है. मुझे इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे इस पर्टिकुलर पेपर में जो है मार्क्स कम आए. एंड थैंक्स टू माई फैमिली सपोर्ट हियर एज वेल, बिकॉज दे नेवर टॉन्टेड मी ऑन टू द थिंग दैट सी यू आर गेटिंग नॉट गुड ग्रेड्स, यू कांट डू एनीथिंग. मुझे कभी ऐसा नहीं बोला गया, विच इज़ एक्चुअली वेरी रेयर थिंग आई basically observe. After 10th, it was something that I started making videos. The 11th and 12th, it was कि मैं घर पे ही पढ़ा करती थी, and I actually scored. So 11th and 12th was going well. और आप ये भी कह सकते हैं 11th and 12th में there were only 2 students from arts into my batch, and best part was that I was only the one who was competing with myself, because the other student do not care what he score and what not, because he was just there ki okay, I wanted to pass, so I'm doing this with arts in such a way. So I scored 90 in my 12th. However, I was expecting 95. मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपना फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था 12th का इंग्लिश का, उस दौरान when I came back and observed that there were many students who were actually crying, and there was a reason कि इंग्लिश का पेपर काफ़ी लेंदी आता था पहले, और लेंदी आने की वजह से बहुत सारे बच्चों का पोर्शन छूट गया था. लाइक दे टॉपर्स वर क्राइंग ऑन 5 marks एंड आई रिमेंबर आई लेफ्ट फॉर 20 marks. सो स्टिल आई वॉज चिल, मतलब मुझे तब भी रोना नहीं आया था. हाँ, टेंशन हुई थी कि अभी इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट मी स्ट्रेट फ्रॉम 4%, बट इट वॉज टू मच फॉर मी, ट्रस्ट मी, बिकॉज मेरे पास उस वक्त गोल था इतना परसेंटेज आएगा तभी जाके ये कॉलेज मिलेगा, जो कि इंग्लिश में ही टूट गया. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई रियली वर्क हार्ड इन अदर सब्जेक्ट, एंड दिस इज द रीज़न दैट आई मैनेज टू स्कोर about 95, 97, 98 in other subject, because मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था. सो आई डिड इट. अभी आफ्टर 12 ऑनेस्टली स्पीकिंग, ग्रेजुएशन के ग्रेड्स, मतलब ग्रेजुएशन के ग्रेड्स का ये हाल है कि आपने 4th सेमेस्टर के अपने एग्ज़ाम दिया, कोई भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, उसके 1 या 2 महीने बाद आपका जो है उस सेमेस्टर का रिजल्ट आता है. तो
जब इतना टाइम पीरियड हो जाता है ना तो लेस वैल्यूएबल, मतलब बच्चे कहते हैं अरे ठीक है इतना टाइम हो गया। उस स्कूल में क्या होता था, आपने एग्ज़ाम दिया और उसके विद इन फ्यू डेज आपका रिजल्ट आ जाता था। तो कॉलेज इज़ वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल दैट डू नॉट गो फॉर गुड ग्रेड्स एंड मेहनत मत करो, नो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग, but I'm saying that those who are not scoring grades and even those who are actually going for good grades, go for the concept they are trying to teach you। मतलब लोग शिक्षित हो रहे हैं बट वो उनके आचरण में नहीं दिखता। आप किसी से बात करो तो आपको पता चल जाएगा दिस पर्सन इज merely of good grades or actually achieved something like not academics, not so many awards, certificates। I'm talking about कि इस concept से क्या सीखा। I have one thing into my mind. I started making videos because I had this ability, or in fact have this ability कि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ती हूँ वो रिलेट कर लेती हूँ जो कि हर बच्चा नहीं कर पाता है। आई एक्सेप्ट द फैक्ट, दिस इज समथिंग, देयर इज नथिंग टू फ्लैक्स, इट इज समथिंग रियलिटी, फाइन। सो आई कैन रिलेट दैट सब्जेक्ट विच नॉट एवरी वन कैन डू। For instance, let me tell you about the current semester is going on 6th semester. So there's a one philosopher named Rousseau. Okay, so उनकी जो inequality के concepts and all, I discuss those concepts in such a way, like I used to talk to my family members inequality के बारे में, natural inequality, man-made inequality, like वो topic मैं इतना ज़्यादा generalize कर देती हूँ ना, even a noob can understand। Even 5 to 6 year old child of my home, I can discuss that particular thing with that child। So I just urge to every student that rather going for a grades, यार वो sum up समझो, क्योंकि अगर ग्रेड्स नहीं आए ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 2 से 3 साल बाद और जब आप लाइफ में बैक करके देखोगे, यार मैं लाइक सीरियसली मार्क्स कमाने की वजह से रोया था, this is going to be something that you're gonna laugh at one point of a time। So make sure that you are going to do things in such a way कि वो आपको खटके ना, क्योंकि आप अपना एग्ज़ाम दे लोगे। अगर किसी से भी पूछ लो, अगर उसने पढ़ाई की है तो वो कुछ टाइम बाद पढ़ाई के कांटेक्ट में नहीं हो तो भूल जाता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप भूल सकते हो लेकिन कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते हो। आपको पता होगा कि आकाश जो है वो नीला क्यों होता है, आपको पता होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, आपको प्रीएम्बल फिर भी याद होगी, और आपको ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की है और क्या इम्पॉर्टेंट थी। तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भूल सकते हो, आप नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स भूल सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप मतलब ऐसे इन्फो भूल सकते हो, बट नॉट अदर थिंग्स। सो इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, रीड इन अ वे कि आप उसको जनरलाइज कर सको। ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट किताबों से पढ़ो जो आपको रेफ़र की गई है। आई स्टिल रिमेंबर आई नेवर रेफर द बुक्स विच एवर माई टीचर सजेस्टेड। आई माइट बी अनोइंग किड इन टू दिस टर्म, बट मैंने ऐसा किया है क्योंकि अरे यार मुझे नहीं आ रहा समझ में, आप मुझे इतनी मोटी किताब दे रहे हो एंड आस्किंग मी कि आप लोगों को इससे पढ़ना है, एंड माई क्वेश्चन इज़ वो मोटी चाहे जितनी भी यूज़फुल बुक क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही है तो मेरे लिए यूज़फुल नहीं होगी। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है जो आपको डिलीवर कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन, वो किस तरीके से डिलीवर कर रहा है। सेकंड, अगर डिलीवर नहीं कर रहा है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज वहाँ नहीं पहुँचा है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ अ PDF, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ अ बुक। द रीज़न इज़ दैट मेरा जो डेवलपमेंट है टूवर्ड्स अ लैंग्वेज वो इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है दैट आई कैन गो फॉर इट। बट स्टिल अगर आज भी एक क्लास 12 के स्टूडेंट को नीड टू हैव अ टीचर, और ओके इवन अ टीचर इज़ गोइंग टू रीड यू समथिंग, आपको उसका जो है इंटरप्रिटेशन चाहिए है, कोई आपको कि ऐसा एक्सप्लेन करे। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। So if something is not going into your life well, just give it a lesser importance and think about it. There are also other aspects into your life. So deteriorating academics isn't the only thing. You got so many things to do. And अगर आपका ये perception रहेगा, trust me, things are going to be quite smoother for you. That's it for today's video. Do let me know comment section कि आपने अपने क्लास 12th में कितना स्कोर किया था। आप ऑलरेडी क्लास 12th में हो तो आप मुझे अपना 10th का बताओ, अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज का। In my first semester, I actually got 6.5 CGPA. This was something I was very clear. In fact, I told
my family member, around I called them before my examination, said that see, don't expect me to do well into my first semester because I'm clear I won't be able to score much. ठीक है, तो जितना आए एक्सेप्ट कर लेना. They were like कि हाँ हाँ ठीक है, अपने हिसाब से कर लो. And after first, this was the only physical mode examination I given in my entire bachelor degree, and then I went for second year. So second year में I scored around 7.5 CGPA, and most probably I'm also expecting same CGPA into my third as well. तो अभी fifth semester का हमारा result आया, उसमें भी I got 7.5 CGPA. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कम मार्क्स मिल रहे हैं, बट मुझे रियलिटी चेक मिले कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मुझे कितना स्कोर करने को मिला. 6.5 हो, 5.5 हो, इट्स एक्सेप्टेबल फॉर मी, बट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी दैट आई एम गोइंग टू डू लाइक चीट. मुझे चीटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट क्या है इसका? मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता है इसका. सो दिस इज़ समथिंग. क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम में बहुत सारों को होता है कि खुद को प्रूव करना है, बहुत सारों को होता है कि फैमिली को प्रूव करना है. माई फैमिली भी लाइक कि चिल पिल, दैट डू whatever you wanna do, that's it. Okay, if you have your college grades, share with me into my comment section and let's talk about it, that how people have made this academics wala thing so much bigger, which is not. Hit the like button, share this video and subscribe to Share with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.